Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello everyone. Student, today we are going to learn our next lesson. Lesson number 34, the king of the golden river. Okay. In Hindi we say Sunehri Nadi ka Raja. Okay. This is part 1 and again we have to learn part 2 also. Now see what is given in part 1. First of all, I will read the lesson. Long, long ago, in the mountainous part of a country, there was a fertile valley. There were many waterfalls lapping down the mountain tops, but not into the valley. They all ran down the outside of the mountain. One of the falls was very high and shone like gold in the beams of the evening sun. People called it the golden river. Okay. Now see first of all the new words. Fertile valley. Okay. Fertile valley means उपजाऊ and valley means घाटी. Okay. Darya. Now here again the word comes here. Lapping. The meaning of lapping means नीचे झुकना. Okay. Again the new word shone like gold. Okay, means chamakna. Shone means chamakna. Beams. The meaning of beams is kiran. Okay, meaning of beams is kiran. Now see here the whole meaning of this paragraph. Long, long ago in the mountainous part of the country there was a fertile valley. Okay, बहुत पुरानी बात है जहाँ पे एक माउंटेन जो पहाड़ था, जहाँ पे कंट्री पूरी माउंटेन से माउंटेन्स थे वहाँ पे क्या था, एक फर्टाइल वैली थी. फर्टाइल मीन्स एबल टू प्रोड्यूस गुड क्वालिटी क्रॉप्स. ओके, उपजाऊ एक वैली थी, घाटी थी. देयर वेयर मेनी वाटरफॉल्स लेपिंग डाउन द माउंटेन्स टॉप्स बट नॉट इनटू द वैली. वहाँ पे क्या था, बहुत सारे वाटरफॉल मीन्स झरने थे जो नीचे झुके जा रहे थे, पर उसका जो वाटर था वो वैली में नहीं गिरता था. दे ऑल रन डाउन द अदर साइड ऑफ द माउंटेन. वो दूसरी तरफ, माउंटेन की दूसरी तरफ वो वाटर जो था वो गिरता था. वन ऑफ द फॉल्स वॉज वेरी हाई एंड शोन लाइक गोल्ड इन द बीम्स ऑफ द इवनिंग सन. और उसमें से जो वो झरने में से जो एक झरना था वो इतनी ऊंचाई से नीचे आता था और उसका जो किरण कैसे दिखता था सन में, कि जैसे कि कोई गोल्डन वाला चमकता हुआ एक गोल्डन वाला किरण जैसा दिखता था. पीपल कॉल इट द गोल्डन रिवर. बिकॉज ऑफ दिस द पीपल कॉल दिस वैली इज गोल्डन रिवर. उसकी वजह से सब लोग उसको गोल्डन रिवर बोलते थे. नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ. नाउ दो देयर वेयर नो स्ट्रीम्स running down to the valley itself, the wind constantly brought the clouds to the valley. Even when the rest of the country was dry, it always rained in the valley. In the valley, the wind and the clouds made the crops green, the hay high, the apples red, the grapes purple, and the honey sweet. People called it the treasure valley. Okay. Now see here, student, first of all the new words. See here, constantly. Okay, the meaning of constantly means continuously. Constantly means continuously. Now the next crop. Crops means फसल. Okay, जो खेती में जो ग्रो होता है फसल, उसको क्रॉप्स बोलते. Now next word, treasure valley. Okay, treasure valley means खजाना. Okay, treasure means खजाना. Now see the meaning of this paragraph. Now, though there were no streams running down to the valley itself, the wind constantly brought the clouds to the valley. वहाँ पे कोई भी ऐसे स्ट्रीम्स कुछ भी नहीं था, फिर भी वहाँ पे क्या था, जो वो वैली थी वो वहाँ पे हमेशा क्या होता था, हमेशा विंड कॉन्स्टेंटली वहाँ से क्लाउड्स यहाँ से वहाँ जाते थे. Even when the rest of the country was dry, it always rained in the valley. आजू बाजू के प्लेस में जब पूरा ड्राई होता था, पूरा सूखा होता था प्लेस, तब भी जो ये वैली थी वो हमेशा हरी भरी रहती थी. यहाँ पे हमेशा पानी अवेलेबल रहता था. इन द वैली द विंड एंड द क्लाउड्स made the crops green,
the hay high, the apple red, the grapes purple and the honey sweet. फिर भी क्या होता था, इन द वैली में जो विंड आता था, क्लाउड्स आते थे, बारिश अच्छे से होती थी, तो उसकी वजह से क्या होता था, जो क्रॉप्स होते थे वो ग्रीन आते थे, और जो है जो वहाँ पे जो क्या बोलते हैं हम उसको, घास होती थी, वो अच्छी तरह से आती थी। एप्पल रेड रेड वाले अच्छे अच्छे वाले एप्पल आते थे, और ग्रेप्स भी पर्पल कलर के ग्रेप्स होते थे वहाँ पे, और जो हनी वहाँ पे अवेलेबल होती थी वो कैसी थी, स्वीट वाली हनी थी। ओके, सो पीपल कॉल्ड इट द ट्रेजर वैली। इसकी वजह से जो पूरे पीपल थे वहाँ पे जो रहते थे वो लोग ये वैली को ट्रेजर वैली बोलते थे, खजाने वाली घाटी बोलते थे इसको, क्योंकि वहाँ पे पूरे क्रॉप्स अच्छे से आते थे, इसलिए सब लोग उसको खजाने वाली वैली बोलते थे। नेक्स्ट, द ट्रेजर वैली बिलोंग्ड टू 3 brothers, Squats, Hands and Cluck. The 2 older brothers were big, ugly and wicked. They were good farmers, but they killed everything that was not profitable for them. Even little things like blackbirds and hedgehogs and crickets. They did not treat their servant well and gave them only poor wages. They waited till the corn had become very expensive in the market and then sold it for twice its value. They were very rich, but they were never ever gave even so much as a penny to the poor. People call them the Black Brothers. Now see first of all the new words. See a student. New words. Yes, hedgehogs. Okay, hedgehogs is a small brown animal. Okay, with a covering of spines on its back. A small brown animal, it's called hedgehogs. And then cricket means what? A brown or black insects. Okay, then next new word, wages. The meaning of wages is the money that is paid for the worker. Okay, now profitable. The meaning of where it is profitable. See here, yes, profitable. The meaning of profitable is likely to result in profit or advantage. Okay, now see here again, wicked. Wicked means बुरे. Wicked means बुरे वाले. Okay, now see the whole meaning of this paragraph. The treasure valley belonged to 3 brothers. वहाँ पे जो ये ट्रेजर वैली थी, खजाने वाली घाटी थी, वहाँ पे 3 brothers रहते थे. उनके नाम क्या थे? उनके नाम थे स्क्वैट्स, हैंस एंड क्लक. ये उनके नाम थे. The 2 older brothers were big and ugly and wicked. Okay, जो उसमें से जो 2 ब्रदर्स थे बड़े वाले, वो कैसे थे? बिग थे, बड़े थे वो, और अगली दिखते थे, बुरे दिखते थे, और वो विक्ड थे, वो बुरा बर्ताव भी करते थे. दे वेयर गुड फार्मर्स बट दे किल्ड एवरीथिंग दैट वाज नॉट प्रॉफिटेबल फॉर देम. वो अच्छे वाले फार्मर थे, वो खेती अच्छी करते थे, फार्मिंग अच्छे करते थे, पर वो जो उनके लिए प्रॉफिटेबल है, जो उनके लिए फ़ायदेमंद है, उसको ही वो वैल्यू देते थे. बाकी किसी को भी वो वैल्यू नहीं देते थे. इवन लिटिल थिंग्स लाइक ब्लैक बर्ड्स, hedgehogs एंड क्रिकेट्स. ओके, जो छोटे छोटे जो इंसेक्ट होते हैं, एनिमल होते हैं, वो उनको क्या करते थे? दे डिड नॉट ट्रीट देयर सर्वेंट वेल. वो उनको तो मारते थे, किल करते थे ऐसे वाले एनिमल्स को, और जो उनके पास जो सर्वेंट थे उनको वो पुअर वेजेस देते थे. पुअर उनको क्या देते थे? उसका जो मुबदला है वो बहुत ही कम पैसे उनको वो देते थे. नाउ दे वेटेड टिल द कॉर्न हैड बिकम वेरी एक्सपेंसिव इन द मार्केट एंड देन सोल्ड इट फॉर ट्वाइस इट्स वैल्यू. वो वेट करते थे, उनको उनके जो कॉर्न थे वो उसको अच्छी वाली फसल आने तक वो वेट करते थे, और जब उसको अच्छी वाली फसल आती थी तो वो मार्केट में उसका दाम दुप्पट करके, उसका दाम ट्वाइस करके उसको वो बेचते थे. दे वेयर वेरी रिच बट दे नेवर एवर गेव इवन सो मच एज अ पेनी टू द पुअर. वो बहुत ही अमीर थे, क्योंकि उनके पास अच्छे वाले पैसे आते थे कॉर्न को सेल करके, फिर भी वो एक भी पेनी, एक भी रुपया वो गरीबों को नहीं देते थे. People call them the black brother. That's why all the people call them the black brothers.
बहुत बुरे वाले ब्रदर सब लोग उनको बोलते थे. नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ. The youngest of the three brothers was only 12 years old. He was just the opposite of his brothers. He was kind to every living thing, though his own brothers were cruel to him and made him do all the cooking and the mending and the housework for them. Okay, वो जो उसके ब्रदर थे बाकी वाले, वो क्या करते थे, उनमें से जो ये जो सबसे छोटा वाला था वो कितने ईयर्स का था, वो सिर्फ 12 ईयर्स का था. ओके, और ये लोग, वो कैसा था, वो बहुत ही काइंड था और उसके जो ऑल जो ब्रदर थे वो बहुत ही क्रूएल थे. सी य स्टूडेंट, द अपोजिट वर्ड ऑफ काइंड इज़ क्रूएल. ओके, नाउ वो लोग क्या करते थे, उसको पूरा काम देते थे छोटे भाई को. उसको कुकिंग बोलते थे, मेंडिंग बोलते थे. मेंडिंग मीन्स मरम्मत वाला काम, कुकिंग वाला काम, हाउसवर्क देते थे, पूरा घर का काम वो ये छोटे 12 ईयर्स ब्रदर को ही बोलते थे करने के लिए. नाउ सी द नेक्स्ट. One evening the two brothers had gone out as usual. They had warned Clark to let nobody in and give nothing out. Clark was to get their dinner ready for them. हमेशा की तरह एक इवनिंग को क्या हुआ, वो जो ब्रदर थे वो बाहर गए और उन्होंने हमेशा की तरह क्लर्क को वार्निंग दी कि किसी को भी अंदर नहीं लेना है. और क्लर्क भी उनकी बात सुन के अपने डिनर के लिए डिनर की जो तैयारी थी उसको रेडी कर रहा था, उसमें वो बिज़ी हो गया था. ओके, नाउ सी द नेक्स्ट वन. It was raining very hard outside and the weather was very cold. Just then there was a double knock on the door. Clark went to the window and put his head out to see who it was. He saw the most extraordinary looking gentleman standing at the door. Now see the new words. Okay, first of all see the new words from this paragraph. See here, Clark is it is the name of the brother. Okay, now extraordinary. Extraordinary means something special. Okay, gentleman means very nice man, very good person. Okay, now see the whole meaning of this paragraph. It was raining very hard outside and the weather was very cold. वहाँ पे क्या शुरू हो गई, बहुत भारी बारिश शुरू हो गई और जो वेदर था वो पूरा कोल्ड हो गया. और उसी दौरान क्या हुआ, जस्ट देन देयर वॉज अ डबल नॉक ऑन द डोर. उसी समय जो डोर था वहाँ पे डबल नॉक किसी ने किया. क्लर्क वेंट टू द विंडो एंड पुट हिज हेड आउट टू सी हु इट वॉज. क्लर्क बाहर आया और उसने विंडो खोली और देखा कि बाहर कौन है. सी हियर स्टूडेंट, क्लर्क झुक के देख रहा कि बाहर कौन है, किसने नॉक किया. नाउ ही सॉ द मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी लुकिंग जेंटलमैन स्टैंडिंग एट द डोर. उसने देखा एक कोई तो भी अजीब वाला एक पर्सन था, पर वो अच्छा वाला जेंटलमैन दिख रहा था और वो डोर के बाहर वो खड़ा था. नाउ सी योर स्टूडेंट, द जेंटलमैन पर्सन. ओके, ही वॉज वन जेंटलमैन नॉकिंग द डोर. ओके, नाउ सी द नेक्स्ट lesson in our next part.